The next topic is image formation by spherical mirror formula. So what is the image? For image formation, first you should know that what is the nature of the image. In nature of the image, you should know about the three things about the image. What kind of the image you have got. Either the image is real or the imaginary. Real or imaginary mean either the image has been formed by the actual meet of the rays or the rays have been enhanced, कन्वर्ज खुद से हुई हैं या उन्हें इन्हांस करके पीछे से फिर उनको मिलाया गया है. अगर तो खुद से मीट हुई हैं तो देन रियल इमेज विल बी फॉर्म्ड, और अगर उनको इन्हांस करके मिलाया गया है तो इमेजनरी इमेज विल बी फॉर्म्ड. इरेक्ट और इन्वर्टेड. इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ इरेक्ट, आई एम द ऑब्जेक्ट एंड इफ़ आई हैव सीन माई इमेज इन द मिरर इरेक्ट, बिल्कुल सीधा नज़र आ रहा है तो माई इमेज इज़ आल्सो इरेक्ट. लेकिन अगर इफ़ द इमेज इज़ इन्वर्टेड, उल्टा है, द इमेज विल बी द इन्वर्टेड. सेकेंड, nature of the image. And the third is smaller than the object or the larger of the object. If the object is me and the image is smaller or the larger, the image can be the same size of the object. This is also the possibility. Now come to the how you can find the nature of the image. There are two methods to find the nature of the image. Three characteristics find can two methods: graphical methods or the ray diagrams, and the second one is the mirror formula. Simply you have to remember this formula: 1 over f is equal to 1 over p plus 1 over q. Here the q, have to find out what is the q. F, you know, this is the focal length. Focal length have been discussed earlier. Focal length is the distance between the principal focus and the pole, that is called the focal length. p क्या है और q क्या है? What is the p and what is the q? P is the distance of the object from the image, from the mirror. If I am standing over before the mirror, the distance of me from the mirror, that is called the P, and the image का distance from the mirror, that is called the Q. Okay. Next, the mirror formula. So in the previous slide you have seen mirror formula में how many terms you are using? F, P and Q. Distance object, that is the P, image distance, that is the Q, and the focal length. So mirror formula is the relationship between object distance, that is the P, image distance, that is the Q, and the focal length F, that is the mirror formula. And the mirror formula mathematically it can be written as 1 over F is equal to 1 over P plus 1 over Q. Proof is not included over there, so you have to remember just the formula. Here how you can find out the nature of the image on the next page in your book. Here the sign convention table is given over there. This is the quantity object distance P if the object is real and the object is virtual object. Virtual object कैसे है? वही एग्जाम्पल कि अगर आप पार्लर पे जाते हैं, ब्यूटी पार्लर्स आपने देखे होंगे, वहाँ पे वॉल्स के ऊपर 2-3 मिरर्स लगे हुए होते हैं. इफ़ यू सी योर इमेज ऑन द मिरर, जहाँ पे आप बैठते हैं वहाँ पे आप अपना इमेज देख रहे हैं, तो उससे साथ वाले मिरर के ऊपर काफ़ी सारे 7-8 इमेजेस नज़र आ रहे हैं आपको. शीशे 7-8 जगहों पे आप नज़र आ रहे हैं. साथ वाले मिरर में जो आपका इमेज बन रहा होगा वो डायरेक्ट आपसे, एक मिरर के अंदर आपका इमेज आपकी बॉडी को यूज़ करके आप जहाँ पे खड़े हैं वहाँ बन रहा है. साथ वाले मिरर के अंदर आपका इमेज साथ वाले शीशे में से आपको लेकर बनाया जा रहा है. सो साथ वाले शीशे में से देखकर उसका जो इमेज बन रहा है, तो वहाँ से आपके शीशे के अंदर से, मिरर से लेकर आपका जो इमेज बनाना है, दैट इज़ कॉल्ड द विर्चुअल इमेज. जैसे एक शीशा लेकर उसके ऊपर इमेज बनना, आई एम द रियल ऑब्जेक्ट, वहाँ पे मेरा इमेज बन रहा है एक मिरर के आगे, वो हमारे पास हो गया, हमारे पास एक इमेज बन रहा है. उस इमेज को देखकर साथ वाले मिरर के ऊपर फिर दोबारा इमेज बना लेना, तो मेरा रियल ऑब्जेक्ट से एक इमेज बना, उस इमेज से एक और इमेज बन जाना, तो जो फर्स्ट इमेज है दैट विल एक्ट एज अ विर्चुअल ऑब्जेक्ट. ओके. अगर आपके पास विर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो आप P को नेगेटिव लेंगे, अगर आपके पास रियल ऑब्जेक्ट है तो आप P को पॉजिटिव लेंगे. अगर आप एग्जाम्पल्स, यू विल सॉल्व द एग्जाम्पल्स एंड द प्रॉब्लम्स, आपको उसके अंदर मेंशन होगा द ऑब्जेक्ट इज़ रियल, ऑब्जेक्ट इज़ विर्चुअल.
तो आप p के साथ उसके साथ इन द सेंटीमीटर्स में ही ऑलवेज द वैल्यू आर गिवन ऑफ द p q एंड द f आर गिवन इन सेंटीमीटर ऑलवेज. इफ़ देयर इज़ अ मीटर यू विल कन्वर्ट इनटू द सेंटीमीटर्स. ओके, तो वहाँ पे आप इसको करेंगे. इमेज डिस्टेंस दैट इज़ द q. तो q इज़ द इमेज डिस्टेंस. रियल इमेज बन रहा है. रियल इमेज कहाँ पे बन रहा था? दैट आर फॉर्म्ड इन द कनकेव मिरर. अगर कनकेव मिरर दिया हुआ है आपके पास, रियल इमेज बन रहा है, तो आप उसमें पॉजिटिव लेंगे उसकी क्वांटिटी को. और अगर वर्चुअल इमेज है एंड दैट इज़ गिवन इन द स्टेटमेंट ऑफ द एग्जांपल्स एंड द प्रॉब्लम्स, उसमें दिया हुआ होता है रियल इमेज इज़ फॉर्म्ड. अगर रियल इमेज बनता है तो आप q को प्लस, जैसे 25 सेंटीमीटर इज़ गिवन, तो q के साथ 25 सेंटीमीटर लिखेंगे. अगर दिया हुआ है virtual image is formed, तो आप q is equal to minus 25 सेंटीमीटर लिखेंगे. The third quantity is focal length f. f for the concave mirror you will take it positive, and for convex mirror you take it negative. This table, these sign conventions you have to remember to solve the problems or the numericals. Okay, next activity 12.3. This is the practical that have to be performed in the practical lab. Okay, next example, ये साइड पे the candle is given over there. Object is the candle, center में mirror है and the image is there. The object distance from the mirror that is called the p, and the image distance from the mirror that is called the q. Okay, next is example 12.1. A convex mirror. Convex mirror. First of all you will underline the mirror. What kind of mirror is there? For this convex mirror you have to take the focal length negative. Okay, go up and see. convex mirror के लिए आपको focal length negative लेनी पड़ेगी. Okay, convex mirror के लिए आपको focal length is used to reflect the light from an object placed 66 centimeter in front of the mirror. So convex mirror is placed to reflect the light from an object. Object distance, आपको convex mirror एक object से 66 सेंटीमीटर in front of the mirror पड़ा हुआ है, तो object distance that is represented by the p. So p distance given data side पे लिखें या लिखा हुआ है p is equal to 66 सेंटीमीटर. and for the convex mirror virtual image object real है, candle is the real object. so वहाँ से दिया हुआ है the focal length of the mirror is 46. तो फोकल लेंथ के साथ उन्होंने -46 सेंटीमीटर लगाया हुआ है एग्जाम्पल के अंदर, बिकॉज दिस इज़ अ कन्वेक्स मिरर. कन्वेक्स के लिए आप ऑलवेज टेक द f इज इक्वल टू -6. 46. फाइंड द लोकेशन ऑफ द इमेज. आपको लोकेशन फाइंड आउट करनी है. लोकेशन ऑफ द इमेज का मतलब है डिस्टेंस ऑफ द क्यू. डिस्टेंस ऑफ द इमेज आपने फाइंड आउट करना है, दैट इज़ द क्यू. क्यू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q. फार्मूला डायरेक्ट लगाएं. एक ही फार्मूला याद करना है, साइन कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है. 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q. 1/f इज इक्वल टू 1/-46 इज इक्वल टू 1/66 प्लस 1/q. 1/q को उधर ही रहने दें, बाकी चीज़ों को इधर कर लें, बाद में रेसिप्रो कर लेंगे तो q इज इक्वल टू -27 सेंटीमीटर आ जाएगा. व्हाट नेगेटिव साइन इंडिकेट. ऊपर साइन कन्वेंशन में जाएं. इंडिकेट करता है नेगेटिव साइन के हमारे पास इमेज जो है वो हमारे पास बना है वर्चुअल इमेज, क्योंकि वर्चुअल इमेज जो होता है उसके साथ क्यू नेगेटिव आता है. अब नीचे जाके इंडिकेट करना है आपने रिजल्ट में नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द इमेज इज़ बिहाइंड द मिरर एंड देयरफॉर इट इज़ वर्चुअल इमेज. क्योंकि बिहाइंड द मिरर आपको याद होगा ड्यूरिंग द लेक्चर मैंने आपको बिहाइंड द मिरर का बताया था कि जो कन्वेक्स मिरर था उसमें आउटर साइड जो थी वो हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस थी. ऑल द रेज कमिंग आउट डाइवर्ज हो गई थी और उसका जो इमेज था वो बिहाइंड द मिरर बना था. ओके, सो हियर द लेक्चर इज़ फिनिश्ड. नाउ कम टू द सक्सेस क्राइटेरिया एट द एंड. होपफुली you have learned about the reflection, what is reflection and what are the laws of reflection. 2 laws of reflection hai. Types of the spherical mirrors, there are 2 types of spherical mirrors, concave and the convex mirrors. Mirror formula 1/f is equal to 1/p plus 1/q hai. Use and image location by convex and the convex mirror. Uses you have learned, and image location by convex and the convex mirrors में हम देखते हैं p, s and q से कि किसी में हमारे पास इमेजेस बनते हैं और कैसे बन रहे हैं. ठीक है जी. होपफुली यू हैव गॉट अ लिटिल बिट. सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क फ्रॉम मी, एंड प्लीज़ इसे बुक से टैली करें, अंडरलाइन करें उससे थ्योरी को. यू कैन टेल अबाउट, यू कैन रीड इट केयरफुली एंड आस्क एनी क्वेश्चंस फ्रॉम मी. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.